Hello students, let's continue with our chapter number 11, paths to modernization, and we are focusing basically on the our first country, that is Japan. And one of the major things that happened in Japan during the 19th century which led to the modernization and westernization of Japan was the Meiji Restoration. Now we are going to read about the Meiji Restoration. So there was quite a lot of internal discontent between the people and the shoguns who were the leaders in Japan. Why so? Because 1853 में क्या हुआ था कि यूएस हैज सेंट वन ऑफ इट्स मिशनरी विच वॉज द कॉमरेड मैथ्यू पेरी. उन्होंने अपने जो एक ऑफिशियल को भेजा वहाँ से, कॉमरेड मैथ्यू पेरी, क्योंकि 1853 से पहले जब शोगुनेट ने अपना रूल स्टार्ट किया था फ्रॉम द 16-17 सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उन्होंने अपना जो सारा एक्सटर्नल ट्रेड है एंड जो कमिंग अप ऑफ फॉरेनर्स है, दे हैव बैंड इट. तो उनकी जो इकॉनमी थी वो क्या थी? क्लोज्ड इकॉनमी थी, जिसमें कोई भी फॉरेनर्स या किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस वॉज नॉट वेलकम. सो इन 1853 यूएस से एक ऑफिशियल आए जो कि यूएस ने भेजे थे, मैथ्यू पेरी. एंड व्हेन ही केम टू जापान in 1853, what he demanded was that Japan should open its gate for the trade, कि वो अपनी जो बाकी की कंट्रीज है उस ट्रेड के लिए अपने गेट्स खोले. बट जापान डिड नॉट वांटेड टू ओपन इट्स कंट्री टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेनर्स. बट बिकॉज क्योंकि अब शोन दे पावर कि अगर जापान ने उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की, दे हैव दे हैव मोर पावरफुल शिप्स देन देम, तो वो उनको आराम से सब्जुगेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर अब जापान में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको अपनी जो गेट्स हैं फॉर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेनर्स और उनके साथ ट्रेड दे हैव टू बिगिन. सो दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल ऑफ जापान. ऑल्सो एट द सेम टाइम what was happening with China as well. चाइना में भी जो इन्फ्लुएंस है ब्रिटिशर्स का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था. तो ये सब देखते हुए द पीपल वर वेरी बिकमिंग, दे वर नॉट फेवरिंग द शोगुन्स हु वर द रूलर्स ऑफ द जापान एट दैट टाइम. ऑल्सो यूएस को क्यों चाहिए था जापान का कि वो रूट एंड उसका जो रूट है वो ओपन करे फॉर द डिप्लोमेटिक रिलेशन? बिकॉज Japan lay on the route to China, which USA saw as a major market. Also, whaling ships in Pacific needed a place to refuel. Refuel करने के लिए भी उन्हें ships को एक place चाहिए होती थी. So earlier उनके पास ज़्यादातर जो ट्रेड होता था, so उनको refuel करने के लिए अपनी जगह चाहिए थी. तो that's why they wanted Japan to open their gates. Also, जब तक बिकॉज नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि जो शोगुन्स थे, जो एक्चुअल में द रूलर्स ऑफ द जापान, उनसे सब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे बिकॉज द foreigners, they were able to subdue the Japanese government and they have forced them to open their gates for the trading activities. Therefore there happened a major change in the politics which was the Meiji Restoration. So पहले emperor used to exist in Japan, but they were just the religious head. But from now onwards, the emperor, who had the limited political power, now re-emerged as an important figure. In 1868, a movement forcibly removed the shogun from the power and brought the emperor to Edo. This made the capital and renamed Tokyo, which means the eastern capital. So now Meiji Restoration का first major change जो था, which led to the restoration, was the removal of the shogun and the reimposition of the emperor's authority in the Japan. Okay, now further what changes took place, we are going to read that. Okay, so officials and people were aware that some European countries had taken over China, so therefore there was a great resentment among them and they don't wanted to be colonized by any of the European power or US. So therefore now they were favoring, many scholars learned and leaders wanted to learn from the new ideas of Europe rather than ignoring them as Chinese were doing. सो बेसिकली चाइना जो था वो हमेशा अपने आप को अपने ट्रेडिशन में सुपीरियर मानता था. तो उन्होंने हमेशा से जो भी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है या कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है, उन्होंने हमेशा से उसको इग्नोर करना चाहा. और इसी रीज़न से, बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस, दे हैड बिकम सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द चाइना वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश फॉर अ particular point of time. So they don't wanted to do the mistake like China, and therefore they took on various reforms. So one of initial reform was that the government launched a policy with the slogan Fukuoko Kohai, which means rich country, strong army. And they realized that they needed to develop their economy, build a strong army, otherwise they would face the prospect
as being subjugated by the other countries, other Asian countries like the India. इंडिया में जिस तरह से उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हो गया था, एंड वी ऑलरेडी नो दैट चाइना तो एक बहुत बड़ी कंट्री थी, तो उसके कुछ पार्ट पे ही ब्रिटिशर्स ने भी अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश किया था, बट जापान वॉज अ वेरी स्मॉल कंट्री, सो इट would be very easy for the Europeans power to have a very strong influence over the Japanese. तो वो इंडिया की तरह अपनी जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज़ है एशिया की उसकी तरह अपनी फेट नहीं चाहते थे, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग देयर इकोनॉमी एंड आर्मी. At the same time, they also worked to build what was called the emperor system. So emperor system में क्या था कि emperor was the जो system था उसमें emperor थे, और उनके साथ क्या थी उनकी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री जो कि अब एक्सरसाइज पावर कर रहे थे. अर्लियर शोगुन्स थे, नाउ द न्यू सिस्टम डेवलप. व्हाट वाज दैट? इट वाज द emperor सिस्टम. तो पहले इनकी एक पॉलिसी थी फुकोगोई कोहाई, एंड देन द नेक्स्ट इज द एम्परर सिस्टम उन्होंने डेवलप किया. सो ऑफिशियल्स को भेजा गया दूसरे कंट्रीज़ में ताकि वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को समझ सकें, और एम्परर को नाउ द एम्परर वॉज ट्रीटेड विद रेवरेंस विच मीन्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड ही वॉज कंसिडर टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ गॉड. अब एम्परर को ज़्यादा अथॉरिटी दी जा रही थी ताकि लोग उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें. ऑल्सो इस चीज़ को एम्परर जो पूरा ऊपर हमने देखा है एम्परर सिस्टम को टू सो एज टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ एम्परर, हमेशा जो एम्परर का बर्थडे है उसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, और वेस्टर्न साइज मिलिट्री यूनिफॉर्म्स आने लगी थी. नाउ जो एम्परर यूज टू वेयर सच काइंड ऑफ यूनिफॉर्म शो एज टू शो हिज इन्फ्लुएंस बिकॉज ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग द military as well. So the imperial rescript of education of 1890 urged the people to pursue learning, advance public good and promote the common interest. So we can see that किस तरह से मेजी रेस्टोरेशन से ये जो सारे चेंजेस आने स्टार्ट हुए जापान. नाउ फर्दरमोर व्हाट वर दी चेंजेस. सो अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, न्यू स्कूल सिस्टम स्टैब्लिश थे. स्कूलिंग हमेशा से ही कंपलसरी थी, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, एंड बाय 1910 ऑलमोस्ट इट वाज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन. ट्यूशन फीस थी वो कम रखी गई. करिकुलम ज़्यादातर वेस्टर्न मॉडर्न पे बेस्ड था बिकॉज दे वांटेड टू मॉडर्नाइज देयर इकोनॉमी एंड देयर कंट्री, एंड दे नो कि वेस्टर्नाइजेशन जो वेस्टर्न आइडियाज़ है उसी के थ्रू अपनी कंट्री को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि कोई दूसरी कंट्री उन पर आके रूल ना करे. सो देयरफॉर हर चीज़ पे एम्फोसाइज़ किया गया था. वेस्टर्न आइडियाज़ थे, जापानीज़ हिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी एक अलग से बनाई गई थी जो कि सारा करिकुलम देखती थी, टेक्स्ट बुक में क्या आना है, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होनी है, एंड व्हाट वाज कॉल्ड द मॉरल कल्चर हैड टू बी टॉट. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट कि सिर्फ वेस्टर्न आइडियाज़ ही टॉट करे जा रहे थे इन स्कूल, बट मॉरल कल्चर की हाउ द चिल्ड्रन they have to revert to their parents. How they have to revere means respect their parents, and how they should be loyal to the nation and become good citizen. Such moral values were also inculcated in the people. Now further there were certain administrative changes as well. तो आप देख रहे हैं कि every paragraph there is some sort of changes. It started with the political change, moved on to the education, and now third is the administrative structure. तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कितने सारे डोमेन्स और बाउंड्रीज थी, और उनको अकॉर्डिंग टू द दाइम्योस उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. बट नाउ इट वाज रीऑर्गेनाइज. जितना भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स है और डोमेन्स है उनकी न्यू बाउंड्री सेट करी गई. जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको एडिक्वेट बनाया गया ताकि लोकल स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ पर्टिकुलर एरिया की बैलेंस हो सके. ऑल्सो इट वॉज अ रिक्रूटमेंट सेंटर ऑफ मिलिट्री बहुत ज़रूरी थी बिकॉज जापान वॉन्टेड टू मेक इट्स मिलिट्री स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इट वॉन्टेड टू कंट्रोल दी अदर कंट्रीज एंड वॉन्टेड to follow the imperialistic policies as well. So military बहुत important थी. All men over 20 had to do a period of military service. जो मॉडर्न मिलिट्री फोर्स थी उसको डेवलप किया गया. लीगल सिस्टम लाए गए जहाँ पे कि प्रॉपर पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि मीटिंग रखते थे, अपनी ऑर्गेनाइज करते थे सो एज टू प्लान द स्ट्रैटेजीज. बट सेंसरशिप काफ़ी उस टाइम पे स्ट्रिक्ट थी, विच मीन्स सेंसरशिप बेसिकली मीन्स कि किस तरह से जो भी न्यूज़ बाहर जाएगी या जो भी छपेगा, द प्रिंटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़, उसको थोड़ा सेंसर किया जाता था. ऑल दीज मेजर्स लेड टू द गवर्नमेंट टू फेस ऑपोजिशन. वाई? बिकॉज दे वर एक्चुअली वो भी अब क्या कर रहे थे, लोगों पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो उनको एक डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, बट देयर वाज वेरी मच लिमिटेशंस टू देयर पावर्स बिकॉज एम्परर, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री, दीज वर द पीपल हु वर द इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड दे वर इन्फ्लुएंसिंग द कॉमन पीपल. देयरफॉर पीपल वर ऑल्सो रेजिस्टिंग or opposing them. So therefore
जो ग्रुप्स थे, स्पेशली जो एम्परर और ब्यूरोक्रेसी था, वो हमेशा से अलग होता था जो बाकी के मिनिस्टर्स थे, और ये सारे मेजर्स की वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस किया. Also, tension between these different ideas presented by democratic constitution modern army have to have a far reaching consequences. आर्मी ने बहुत ही, क्योंकि अब जो हम ये पॉलिसीज़ देख रहे हैं कि इतनी रिगरस तरह से ये आर्मी को अपनी एनहांस करे थे, इसका जो रीज़न है, वन वॉज दी मेकिंग द नेशन स्ट्रॉन्ग, बट देर वर अदर रीजन्स एज वेल. सो वॉट वॉज दैट? इट वॉज बिकॉज आर्मी pressed for a vigorous foreign policy, which led to its war with China and Russia, and in both which Japan was victor. Later, popular demand for greater democracy was often opposition to the government's aggressive policies. Japan developed economically and acquired a colonial empire that suppressed the spread of democracy at home and put in collision with the people it colonized. तो जापान ने, although जो मेन इनिशियली जब उन्होंने अपने चेंजेस स्टार्ट किए थे, उनके जो चेंजेस थे, दे सीम्स लाइक टू बी डेमोक्रेटिक, बट it actually have a authoritative rule of the emperor and his ministers, which were basically the military leaders, because they were following a very aggressive foreign policy. So these were some of the, so therefore they were facing some of the opposition from the people as well. Now, modernizing economy, how they modernize their economy. We have so far read about the political changes, how there was the changes in the schooling pattern and the administrative changes. Now the changes in the economy. सो इम्पॉर्टेंट चेंजेस, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी था. इसके लिए फंड्स वर रेज्ड बाय लिवाइंग एग्रेरियन टैक्स. जापान की फर्स्ट रेलवे लाइन हम देखते हैं फ्रॉम टोक्यो टू द पोर्ट ऑफ योकोहोमा, कब बिल्ड करी गई थी? 1872 के बीच में फर्स्ट रेलवे लाइन यहाँ पे आई. एंड जो फॉरेन वर्कर्स थे, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, उनको ट्रेन किया गया कि वो और उनको जितनी भी सारी मशीनरी थी वो यूरोप से आ रही थी, और फॉरेन टेक्नीशियंस को बुलाया गया ताकि वो उनको ट्रेन कर सकें. And even people were sent to the different universities all across the world so that they can learn new techniques, and so that they can actually वो new techniques learn करें और अपनी country को और modernize करें. इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी आने स्टार्ट हो गए थे. कंपनीज जैसे कि मित्सुबिशी और सुमिटोमा, नाउ दे वर गेटिंग सब्सिडीज, और दे वर बिल्डिंग मेजर शिप, दे वर द मेजर शिप बिल्डर्स, बिकॉज वी नो दैट जापान वॉज द आइलैंड कंट्री. सो देयरफॉर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डेवलप देयर नेवी एंड शिप बिल्डिंग प्रॉपरली. तो दो उस टाइम पे जो मेजर कंपनीज थी, मित्सुबिशी एंड सुमिटोमा, ये वाली कंपनीज थी जिनको कि गवर्नमेंट भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी थी ताकि ये बहुत ही रिगरस शिप बिल्डिंग कर सके. Also Zaibastu, which we know that जो business organizations थी, वो they were now dominating the Japan after the Meiji Restoration till the period of Second World War, which is 1945. Now talking about the population, how there was change in the population. So population तो जो थी, it was also increasing. 1872 में it was 35 million, 1920 में आते आते it was 55 million. But जो गवर्नमेंट है, दे डिड नॉट वांटेड कि एक ही जगह सारी पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाए. देयरफॉर देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन कहाँ कहाँ हो रहा था? नॉर्दर्न आइलैंड जो होकाइडो का था, वहाँ पे लोगों को भेजा गया, और जो इंडिजीनियस लोग पहले जहाँ पे आइलैंड था, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे, आइनी कम्युनिटी रहती थी, वहाँ पे भी लोगों को भेजा गया. लोगों को हवाई और ब्राज़ील भेजा गया इन दी अदर पार्ट्स, बिकॉज जो जापानीज थे, दे वांटेड टू grow their colonial empire as well. And within Japan there was shift to towns as industries developed. By 1925 21% जो population थी वो cities में रहती थी, और 1935 तक 32% जो population थी, now they have shifted to the city. So there was the main process of this was the migration. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इनिशियली हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा से जो छोटी वर्कशॉप थे, उनका एग्जिस्टेंस हमेशा से ही प्रोमिनेंट रहा है. इवन आप द कमिंग ऑफ बिग इंडस्ट्रीज़, हमेशा से जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स है वो हमेशा से ही इन्फ्लुएंस में रही हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो 7,1870 में थी, जो कि 4 मिलियन, विच मीन्स 40 लैक्स हो गई. कब तक? 1930 तक. ज़्यादातर जो ये लोग काम करते थे, जैसे कि एज आई टोल्ड यू, दे यूज टू वर्क इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ 5 पीपल, लेस देन 5 पीपल. तो ज़्यादातर दे वर एम्प्लॉयड इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज़, और मॉडर्न फैक्ट्रीज़ में विमेन ज़्यादातर ऑर्गेनाइज, और विमेन जो थी वो ज़्यादातर एज ए लेबरर्स वर्क करती थी. और विमेन, दे हैव ऑर्गेनाइज देयर फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन द ईयर 1866. आफ्टर 1900 हम देखते हैं कि जो सब लोग men वर ऑल्सो स्टार्टेड, men ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज़, एंड देयरफॉर वी सी कि 1930 तक आते आते men ज़्यादा हो गए थे विमेन से.
जो फैक्ट्रीज़ का साइज़ था वो भी हमेशा हम देखते कि किस तरह से इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। नाउ ज़्यादातर जो इनकी जो फैमिली सिस्टम था वो फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी थी, नेशनलिज्म फॉलो होता था बिकॉज दे वॉज स्मॉल नेशनलिस्ट फीलिंग दैट दे हैव टू इम्प्रूव देयर वर्क, दे हैव टू improve their economy, and for that they have to improve their industries as well. तो ये इनका एजेंडा रहता था, दिस वॉज द मेजर पॉलिसी. ऑल्सो पेट्रियार्कल सिस्टम वॉज देयर. पेट्रियार्कल मीन्स मेन डोमिनेंट सोसाइटी वेयर, जहाँ पे एम्पर को एज अ फैमिली पेट्रियार्क, विच मीन्स ऑल द जापान इज द फैमिली ऑफ द एम्पर एंड ही इज़ द रूलर, वी हैव टू फॉलो एंड रिस्पेक्ट दैट एम्पर. सो दिस वॉज द आइडियोलॉजी दैट वॉज बीइंग रिगरसली फॉलोड. देन वी सी दैट इंडस्ट्रियल की जो डिमांड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से बढ़ता गया, देयर वॉज इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एज वेल. और तानाका शोजुकू, वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज द फर्स्ट person who has agitated against the growing industrial pollution in the 1897. और इनके 800 विलेजेस थे जहाँ पे इन्होंने अपना प्रोटेस्ट कैरी ऑन किया, ताकि वो जो गवर्नमेंट है जो बिना सोचे समझे दे वर एक्सपेंडिंग, सो दैट दे कुड बी पुट अ हॉल्ट. ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास कि तानाको शोजुका, ये वाला जो द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन अबाउट हिम, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now how did they carried on their aggressive nationalism policy? So मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वॉज बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज एंड इट हैड क्रिएटेड अ डाइट. तो उन्होंने अपना जो पार्लियामेंट बनाया था, इट वॉज बेस्ड ऑन द जर्मन लीगल आइडियाज़. तो ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस थे पॉलिटिकली एंड इवन इन द मिलिट्री एजेंडाज, जो जापान का जो इंस्पिरेशन था, इट वॉज ऑलवेज दी जर्मनी. देयरफॉर दे ऑलवेज सपोर्टेड जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर्स. उनके जो लीडर्स थे, सो द लीडर्स हु बॉट द इम्पीरियल रेस्टोरेशन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज देयर पावर, जिन्होंने हेल्प करा था रेस्टोर करने को. who were those? They were the samurais and and they were the daimyos of the Satsuma clan. एंड वही जो लोग थे जिन्होंने हटाने में हेल्प करी थी शोगुन्स को, दे वर द पीपल हु वर इन्फ्लुएंसिंग. ऑल्दो 1918 से 1931 के बीच में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म कैबिनेट्स जो कि पॉपुलरली इलेक्ट होते थे, लेकिन उससे पहले तक हम देखते हैं एम्परर की ही हमेशा, एम्परर वॉज द कमांडर ऑफ द ऑल द फोर्सेस. 1899 में जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि only serving generals and admirers could become ministers, which means though there was a parliament but still the authority, all the authority was under the emperor and his ministers only. This strengthening of the military together with expansion of Japan colonial empower was connected with the fear that Japan was on the mercy of western power. So ये सब स्ट्रेंथ मिलिट्री क्यों एक्सटेंड करे थे कि ठीक है अभी तक जो फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने जापान पे अपना इन्फ्लुएंस नहीं किया है, लेकिन इन फ्यूचर दे कैन इन्फ्लुएंस जापान इन वन और द अदर वे. देयरफॉर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कैरी द एग्रेसिव नेशनलिज्म. सो इसलिए द फियर वाज यूज्ड टू साइलेंस द अपोजिशन and rigorous expansionist policy were carried and higher tax was being imposed so that army जो forces है उनको funding करी जा सके. So aggressive nationalism was basically carried on so that they can protect their country from being one of the colony of the Europeans. In our next module we will further continue our chapter.